Okay, show me some thumbs up so that I know that I'm live. I don't understand that I'm live or not. Yeah, am I live? Hi Pia. Hi Rakhi. Okay, I'm live. So good evening everyone. This is Bela Bhatt, presenter of the show called Dil Ki Baat, a heart-to-heart talk with courageous women, presented by Unimo Universe of Moms, the world's largest and fastest growing mommy community on Facebook. We are 4.66 lakhs mother across the globe. And we are going strong with your love and support. Keep on showering this love and support and make us this Unimo Universe of Moms a strongest community of mothers, because it's for the mothers by the mothers. And as I say, then Unimo Universe of Moms, for the mothers by the mothers, always come up with the unique and innovative ideas for encouraging mother, doing a lot of stuff for the mothers, for the women's. And this is one of the initiative which is called Dil Ki Baat, a heart-to-heart talk with courageous women, where we talk with different zona of the women who have been through their life journey so exceptionally well, with so many of difficulties, and उनकी जो जर्नी से उन्होंने जो लेसन्स लिए हैं या उन्होंने जो मोटिवेशंस पाया है, तो उनके बारे में जब वो बात करना चाहती है या फिर वो बात करती है दिल खोल के, और यूनिमो यूनिवर्स ऑफ मॉम्स का ये इनिशिएटिव है, जो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने दिल की बात दिल से कह सकते हैं, दूसरों से शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत कुछ खास मेहमान है आज मेरे साथ, जो अपने दिल की बात और अपने दिल की एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगी। जो मतलब मैं उनके बारे में सिर्फ कुछ ही लाइनें अगर कहूँ, हाय जूही, हाय राजिया, हाय रुचिता। तो मेरी जो आज की मेहमान है, सिर्फ आप उनके ये कुछ अचीवमेंट सुन के ही आप सोचेंगे कि आई एम श्योर उन्होंने इस जर्नी में कितना कुछ किया होगा कि हमको एक ये छोटे से आधे घंटे के टाइम में हम उनसे बहुत सारी चीजें कुछ ले पाए। सो ये जो मेरी मेहमान है प्रज्ञा वेदांत, जी हाँ प्रज्ञा वेदांत, जो अपनी खुद की प्रज्ञा वेदांत हेयर एंड ब्यूटी एकेडमी मुंबई में चला रही हैं, जो महाराष्ट्र, गुजरात और मुंबई से बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित की गई हैं, जो आज की नारी तेजस्वी नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित की गई है। उन्होंने कला गुरु का अवार्ड भी अपने हिस्से में लिया हुआ है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, हाल ही में महाराष्ट्र रत्न अवार्ड भी मिला है। मतलब यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ वर्क शी इज डूइंग। प्रज्ञा जी अगर आप हमारे साथ हैं तो कैन यू प्लीज, आई हैव सेंट यू द रिक्वेस्ट, पर मैं आपको लाइव नहीं ले पा रही हूँ। सो प्रज्ञा जी आप हैं हमारे साथ, सो इफ यू कुड जस्ट सेंड मी द रिक्वेस्ट और यू कैन ज्वाइन मी सो दैट आई कैन टेक यू लाइव ऑन द कैमरा। एंड इफ सो ये इतने सारे अवार्ड्स जिन्होंने अपने उन्होंने हासिल किए हैं। बहुत एक अच्छी बात उन्होंने कही जब वो बात कर रही थी कि वो दिन के महीने के 27 दिन काम करती हैं, सो दैट इज सो। बहुत सारे औरतों को एम्पावर कर रही हैं अपनी एकेडमी से, बहुत सारे औरतों को काम भी सिखा रही है ब्यूटी और हेयर एकेडमी से। सो बहुत सारा कुछ कर रही है। एंड आई कांट सी हर। Pragya ji, if you are here, please send a request.
I'll message her to come live because I cannot see her. Hi Swati, how are you? Hi Anjali, good to see you guys. So I can't see her and we'll try to bring her on camera in a while. So प्रज्ञा जी हमारे साथ थोड़ी ही देर में. Hi Geeta. Hi. I hope you guys really look forward to the show called Dil Ki Baat. और आप भी कोई अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, you want to speak your heart out, do get in touch with me. Would love to hear you out, and with together your journey, whatever the lessons and whatever experiences as a woman, as a mother we have learned, we can share with each other, and we could really motivate, and we could really give a lesson to each other. So this is whole initiative is Dil Ki Baat. Hi Manisha, how are you? So Pragya, where are you? Come soon. I'm good, Swati. I'm doing good. So Pragya, if you would just join in, and we could really take you on camera fast. Hi Nehal, hi Darshini. Geeta, why don't you share at you? I didn't get you, Geeta, your message. Now I can see Pragya. So Geeta, what are you trying to see? I really didn't get you. Pragya ji, and yeah, Pragya, now I could see you, and I have sent you the request, Pragna. If you could just accept that. Yeah, so I have sent her the request, and she should be there with us in a while. No answer from the live video guest. I don't know. So Geeta, surely I'll tell you what I do in a while. Let my guest just come on a camera and I'll brief you that what I do and what exactly we are trying to do here. Pragna, I'm trying to add you. You just need to accept that request. Yeah. Hi Sonal, how are you doing? Pragna, did you? Have you got the? Yes. Here you are. Very warm welcome and lovely having you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. It is so wonderful when I was ना मैं जब भी आपके बारे में पढ़ रही थी और अभी मैंने इन लोगों को भी बताया कि इतने सारे जो अवार्ड्स आपने अपने झोली में लिए हैं, तो मैंने जब भी वो अवार्ड्स की लिस्ट देखी ना प्रज्ञा जी, तो मतलब ये जर्नी कितनी ब्यूटीफुल रही होगी, मतलब इतने सारे अवार्ड्स. और मैंने ये भी पढ़ा कि सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जैसे जीरो से शुरू करके एक मुकाम तक आप पहुंची, वहां से जिंदगी ने वापस आपको वो जीरो पे लाके आपने वापस उसको शुरू किया. तो मतलब ये इतना बड़ा हमारे लिए भी क्या बोलते हैं कि लेसन है जो हम रियली जानना चाहेंगे कि इतनी सारी हिम्मत, इतनी सारी ताकत, ऐसा कुछ हमें बताइए. सो वेरी वार्म वेलकम. और हम मैं चाहती हूँ हम शुरू से शुरू करें, जैसे आपकी शुरुआत कैसे हुई. सो ओवर टू यू.
थैंक यू बेला जी, इट्स माय प्लेजर। आपने आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, दिल की बात कहने का मौका दिया, और रियली इट्स माय प्लेजर। एंड मेरी जर्नी तो बहुत कभी लंबी है, काफी लंबी है, फिर भी मैं बहुत ये दिल की बात है तो दिल से कहनी पड़ेगी। तो मैं दिल से कहना चाहूंगी कि मेरी 16-17 साल की एज से ही, और मैं बहुत ही पुअर फैमिली में जन्म लिया था, और सिंगल मदर ने मुझे, हम लोगों को बड़ा किया। हम 3 भाई बहन थे और हम लोगों को बड़ा किया, और 16-17 साल की एज में मैं बहुत बड़े सपने लेके शादी मुंबई में की थी, मुंबई आई थी। और एक 10 बाय 10 के रूम कहो या सिंगल रूम कहो, वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और मैंने देखा, क्योंकि सपने बहुत बड़े थे और सपने को पूरा भी करना था, और एक इनबिल्ट टैलेंट जिसको कहते हैं, तो मेहंदी की आर्ट मेरे अंदर छुपी हुई थी, और उस आर्ट को मैंने बाहर निकाला और छोटे छोटे क्लासेस लेना मैंने स्टार्ट किया। माई सेल्फ कला गुरु डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत, मेरा नाम प्रज्ञा वेदांत है। मैं मुंबई से अभी हूँ, और मैंने वो स्टार्ट करने के बाद, तो छोटे छोटे क्लासेस स्टार्टेड करने के बाद में उसी जो इनकम आती थी उसी में से अपने आप को अपग्रेड किया, क्योंकि मुझे ये कदर पता चल गया था कि हुनर है तो कदर है। अगर मेरे अंदर कुछ भी हुनर रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो मेरा अर्निंग का एक जरिया बन जाएगा, और क्या बड़ी नॉलेज बात नेवर कही एंड। आपने, क्या बड़ी बात कही कि हुनर है तो कदर है। अगर आपने सही कदर टाइम है। पे आपके हुनर को पहचान लिया तो दुनिया कदर जरूर करेगी यस आप। यस 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 यस। क्या बात। बस फिर उसी हुनर को मैंने आगे बढ़ाया, और मेरे अपने पास से जमीन जायदाद कोई छीन सकता है, लेकिन आपका नॉलेज आपसे कोई नहीं छीन सकता है। और वही नॉलेज मुझे आज तक, स्टिल टुडे, आज मेरी आंख नहीं है, आज मेरा एक हाथ काम नहीं कर रहा, एक पैर काम नहीं कर रहा है, सिर्फ मेरे जबान से नॉलेज को मैं स्प्रेड करके 15 फैमिली को मैं मेरे अंडर में पाल रही हूँ, बिकॉज ऑफ माई नॉलेज तो दैट्स ओनली। अमेजिंग अमेजिंग। वो भी जर्नी मैं सुनना चाहूंगी, जैसे आप बोल रही है कि वो प्लीज प्लीज बताइए। तो बस उसी से मेरी 82-84 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और मैंने वहां से मेरा 15 रुपीज एंड 20 रुपीज में मेहंदी क्लासेस लेती थी, और वो जो इनकम आती थी, और मैं 11 साल की एज में आईब्रोज बनाना सीख गई थी। अच्छा, और ओ बस वाह। आसपास के लोगों को 2 रुपीज 150 रुपीज लेके मैं आईब्रोज बनाती थी, और वही जो इनकम आता था वो सेव कर करके अपने आप को नया नया सीखती गई। आज की तारीख में भी मैं अब्रॉड सीखने के लिए जाती हूँ, क्योंकि जब हम सीखे थे तो इतना अपग्रेशन नहीं था हमारे पास। हम लोकल बेसिक सब सीख के हम लोग ने स्टार्ट किया, पर जैसे जैसे मुझे पता चला कि ये फील्ड में बहुत अपना सपने को साकार करने की ताकत है, और मैंने इसी फील्ड को पकड़ के रखा, और मैं 15 साल मेहनत करके एक मुकाम पाया। 2005 तक मैंने खुद का घर बना लिया, खुद का पार्लर बना लिया, और 15 साल मेहनत करके बहुत अच्छा मुकाम पाया। लेकिन शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं होगा डियर। और क्या हुआ, ये कुदरत की आफत पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, आपने सुना होगा जब मुंबई में बहुत बड़ा फ्लड आया था, तब उसी हाँ फ्लड हाँ के अंदर मेरा सब कुछ खत्म हो गया था 2005 में 26 जुलाई को। एंड ओ दैट माय टाइम गॉड। आई एम जीरो। और मैंने जो भी कमाया था अगेन मैं नीचे डाउनफॉल हो गया, और मुझे बहुत टेंशन आ गया था, एंड मुझे माइंड का मेजर स्ट्रोक आया, ब्रेन का। और मैं ओ ऑन स्टेज में लेक्चर देते देते मैं कोलाप्स हो गई, और मैं चढ़ी थी अपने पैरों पे और उतरी मैं स्ट्रेचर के ऊपर, और इमीडिएटली मुझे एडमिट किया गया, और मुझे डॉक्टर ने अनाउंस किया कि मुझे पैरालिटिक हो गया है, लेफ्ट साइड मुझे कोई काम नहीं किया, और एक विजन चला गया। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत रोई, और जितने भी लोग हमारे ब्यूटी इंडस्ट्री में जो मैंने 15 साल योगदान दिया था, वो पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई, और उन्होंने बोला हमें मैम को खड़ा करना है। दैट टाइम मैं फाइनेंशियली बहुत बहुत वीक हो गई थी, मेरे पास फाइनेंस भी कुछ नहीं था कि मैं खुद की दवा कर सकूं, क्योंकि मुकाम तो पाया था, बट हस्बैंड की जॉब चली गई मेरी सेवा करते करते, और बच्ची छोटी थी, मेरी 10 साल की बच्ची थी। तो अभी मैं करूँ तो क्या करूँ, फिर मुझे इस ब्यूटी इंडस्ट्री ने सबने फंड इकट्ठा किया और मुझे वापस खड़ा किया, और बोले मैडम की जबान, मेरी जबान तक चली गई थी, पूरा मुंह क्रॉस हो गया था, बट मैं फिजियोथेरेपी, मेरा एक मसीहा बन के आया, जो पप्पू सर इस इंडस्ट्री में मैंने उनको मेरा पार्टनर बनाया है, उन्होंने मुझे एक्सरसाइज करवा करवा के, फिजियोथेरेपी करवा करवा के, व्हील चेयर के ऊपर प्रोग्राम कर करके आज मैं इस लेवल पे पहुंची हूँ कि मैं अब्रॉड भी सेमिनार करने के लिए जाती हूँ। लोग इंडिया से बाहर सीखने के लिए जाते हैं, मैं सिखाने के लिए जाती हूँ।
दैट इज सो अमेजिंग। प्रज्ञा जी, आपने जैसे कहा कि आप कोई इंडस्ट्री को या कोई भी चीज को आपका इतना योगदान अगर देते हो या आपका वो जो नॉलेज देते हो और जब वो समय आने पर आपके साथ खड़े रहे, यू नो, सो दैट इज अगेन इट्स सच एन क्रेडिबल कि वो टाइम पे जिसकी जरूरत थी वो चीज हुई, लोग आपका योगदान वो काम आया कि इतने साल जो आपने उसको दिए थे वो सारे आपको उसी तरह गुडविल, वापस गुडविल, ये गुडविल, किए। यस यस, तो मेरी दैट इज, गुडविल ही मुझे काम आई। यस, सो मतलब अच्छा जो करते हैं या गुडविल आप जो बनाते हो आपके काम से ही सही, पर वो हमेशा आपको काम आती है। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड लेसन, यू नो, फॉर द एंटरप्रेन्योर्स हु आर डूइंग दैट, व्हाटएवर यू आर डूइंग, व्हाटएवर कंट्रीब्यूशन आप जो भी किसी इंडस्ट्री में कर रहे हो, तो हमेशा आपकी जो गुडविल बनती है वो हमेशा आपको काम आती है। यस, यस, यस डियर। और मेरे सो ये कर्म जो ही आप, मेरी पहचान है। करेक्ट करेक्ट, बहुत सही कहा आपने कि कर्म अगर अच्छे हैं और अच्छे कर्म है तो चीजें अपने आप बनती चली जाती है। अब जब ये आपकी जर्नी रही, जैसे यू नो फिजियोथेरेपी हुई और यू नो व्हेन यू आर सेइंग कि हमारी राइट, आपकी पूरी राइट जो साइड है वो लेफ्ट साइड, इनएक्टिव लेफ्ट हो गई, साइड। उसके साथ भी आपने पूरा इतना, तो वो बहुत डिफिकल्ट जर्नी रही होगी नहीं आपकी? देखो, इसमें अपने नियर और जो डियर है वो अपने को सपोर्ट करते हैं, इमोशनली बोलो, फिजिकली बोलो, हमें हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे और नियर और डियर। मेरा फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा था कि जो मेरे मसीहा बन के, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पार्टनर पप्पू सर है, मेरी फ्रेंड जो मेरे सबसे करीब है नीता मैडम, जो आज वो भी मेरी पार्टनर है, ये सब लोगों ने, मेरे हस्बैंड है, मेरी फैमिली है, इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। और सबसे बड़ा, अगर मैं किसी को भी थैंक्स कहना चाहूंगी तो इस ब्यूटी इंडस्ट्री को कहना चाहूंगी कि इस ब्यूटी इंडस्ट्री अगर मुझे वापस एक्सेप्ट नहीं करती थी, आज सबको पता है मैम कुछ नहीं सिखा रही है, सिर्फ मेरा एक ब्रांड नेम लाइन आता है तो भी आज मेरे पास क्लास सब खुल जाता है। वाई? क्योंकि उनको पता है कि मैम जब सिखाती है तो दिल से सिखाती है। और मैं, हमारा एक ही एक स्लोगन है मेरे नाम का, खुद का, अपने आप को मैं हमेशा बोलती हूँ, विद्या दानम सर्वदानात प्रदानम। और ये विद्या ने ही मुझे आज यहाँ तक ऊपर लाया है। तो ये जितना भी मैं दूंगी लोगों को, इतना मेरा बढ़ेगा। तो बस इस वो इंडस्ट्री के अंदर हमेशा मेरे जैसे, ऐसे ही होता है, यू नो, जितना आप देते हो उतना आपको डबल होके मिलता है। इट इज ऑलवेज साइकिल ऑफ द यूनिवर्स, यू नो, कि यस हमेशा यस जो यस। दोगे उससे अच्छा दोगे तो डबल होके आपको मिलेगा। सो दैट इज और अगेन अ यस थिंग, यस, यू नो। बेला जी, मेरा एक हाथ ऊपर वाले ने छीन लिया तो क्या फर्क पड़ा, मेरे आज एक हजारों से हाथ ज्यादा मैंने इस इंडस्ट्री में तैयार किया है, जो मेरे लिए खड़े हैं, जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। आज मेरा लेफ्ट एंड राइट बन के खड़े हैं, मुझे पता महसूस तक नहीं हो रहा है कि मेरा एक साइड नहीं है, क्योंकि हजारों हाथ ऊपर वाले ने दे दिया है। जब एक दरवाजा बंद करता है तो 1000 दरवाजा अपने आप खुल जाता है, वो ये कुदरत का नियम है। बस मैं यही कहना चाहूंगी। पर उसके साथ ना वो नियम के साथ मुझे लगता है कि आपकी विल पावर, आपकी हिम्मत, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मतलब जैसे आपने बोला कि कुदरत वो हिम्मत आप अपने आप को दे देती है, बट वो हिम्मत को आप यू नो उस टाइम पे ना नीचे जाके अपने आप को संभाल के अगर उसको सही दिशा में अगर ले जाए तो प्रज्ञा वेदांत बन सकते हैं, करेक्ट? यस यस। देखिए, मैं भी आखिर में इंसान ही हूँ, तकलीफ तो मुझे भी हुई थी, मैं भी रोई थी, बट अपने आप को मैं एवरीडे हिम्मत देती रही कि नहीं, क्योंकि मेरे सपने थे और मुझे एक मुकाम तक जाना था। मैंने 2005 के अंदर पूरी जीरो हो गई थी, लेकिन मेरे सपने तो अभी अधूरे थे ना, मेरे सपने पूरे नहीं हुए थे, लेकिन ये सपने को पूरा करने के लिए ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से एक ताकत आ गई और तो ये मतलब ताकत अगर आप यहाँ तक सपने लेके आई। देखते हैं, आपने बहुत अच्छी बात करी कि आप सपने देखिए और वो सपने यस जब आप पूरा करना चाहेंगे वही आपको हिम्मत दे देते हैं कि नहीं मुझे ये अचीव यस, करना ऑफ है। कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स। जस्ट ड्रीम, बी ड्रीमर, मतलब इतने सपने देखिए यस, आपको जो भी करना है और वो बड़ा अपने देखो, आप बड़ा बड़ा देखो। यस। बड़ा देखो। सो मैं भी अभी एकदम वही, वैसे मैं भी सपने देखती हूँ, बहुत सारे सपने देखती हूँ। छोटा मत। पर आपने जैसे कहा ना, अब बड़े सपने देखो। और बड़े सपने, आपको इंसान वो ही बनता है जो वो सोचता है।
आपके विचार ही आपकी जिंदगी है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, ऐसा लगोगे अभी मुझे पैरालिटिक हो गया है, मेरा तो अभी लाइफ पूरी बेड पे जाएगी, तो ऊपर से तथास्तु मिलता है और आप बेड पे ही रहोगे। बट अगर आप बड़ा सोचोगे, नेवर, नहीं मुझे तो खड़ा होना है, मेरे सपने अभी बाकी है, मेरे पूरे करने हैं, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको ताकत देती है खड़ा होने के लिए और आप खड़े हो जाते हो। करेक्ट बस करेक्ट। अभी भी मेरा बहुत ड्रीमर है और मैं हर एक हिंदुस्तान की ब्यूटिशियन के अंदर प्रज्ञा वेदांत की झलक पाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। मैं मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहती हूँ और हिंदुस्तान की हर एक लेडीज को यही मैसेज देना चाहती हूँ, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, चलते रहो, रेंगते रहो। अगर रेंगता नहीं आता तो चलो, चलते नहीं आना है तो भागो, भागते रहो, आगे बढ़ते रहो और आगे बढ़िए। और सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखने की कोई सीमा नहीं है। क्या बात है, बहुत सही कहा आपने। और अभी आपकी बेटी कितने साल की हो गई? अभी उसकी शादी हो गई है, वो अभी प्रेग्नेंट है और बस जल्दी मैं नानी बनने वाली हूँ अभी। अरे वाह, और बस यही है। यस यस यस। और मेरी बेटी और दामाद भी इसी फील्ड में है और मुझे हेल्प कर रहे हैं, मेरे हाथ बन के खड़े हैं। और जो मेरा पार्टनर है पप्पू सर, वो मेरा हनुमान है। लोग इंडस्ट्री में बोलते हैं प्रज्ञा वेदांत का हनुमान है, जो मुझे बेटे की तरह मुझे काम कर रहा है और मेरा साथ दे रहा है। पूरा बिजनेस भी वही हैंडल करता है और उसका भी बच्चा है, ये मेरी पूरी फैमिली है। और जो मेरी पार्टनर है नीता मैडम, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी दीदी कहो या मेरी, हम लोग सगी बहने के जैसे रहते। तो ऊपर वाले ने मेरा परिवार बहुत अच्छा दे दिया है। कर्म अच्छे है तो लोग भी ऑटोमेटिकली अच्छे मिल जाते हैं बेला जी। वेरी नाइस वेरी नाइस। और इसी बात पे हम एक ना रैपिड फायर राउंड करेंगे प्रज्ञा जी आपके साथ। मैं आपको एक वर्ड दूंगी, आपको इमीडिएटली उस वर्ड को, जो भी आपके दिमाग में पहले आए वो वर्ड बोलना है आपको, ठीक है? यस। एक वर्ड मैं अगर आपको देती हूँ, जैसे सिचुएशन, यस। तो आपके दिमाग सिचुएशन में तो, सिचुएशन के ऊपर मुझे बात बतानी है। देखो एनीवे सिचुएशन को ही हैंडल करना है, वही एक जिंदगी होती है। अगर आपके सामने कोई भी सिचुएशन आती है और आप अगर डर गए तो मर गए। सिचुएशन के सामने अगर मंद खड़ा रहना, उसी को लड़ना, वही जिंदगी है। करेक्ट, सो वेल सेड। ओके, yes. दूसरा वर्ड है, अब आप मुझे एक ही वर्ड दीजिए। अगर मैं आपको वर्ड एक दे रही हूँ, आप मुझे एक वर्ड देने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपको वर्ड देती हूँ इमोशंस, यस। फैमिली। दैट्स परफेक्ट। अगर मैं आपको वर्ड देती हूँ रिलेशनशिप, फ्रेंड सर्कल, खून का रिश्ता। okay, we are talking to Pragya Vedant, and such a beautiful beautiful journey she is sharing with us. जीरो से शुरू होकर एक मुकाम तक पहुंचे, और जब जिंदगी ने कुछ कारणोंवश वापस जीरो पर ला दिया, पर उन्होंने हार न मानते हुए वहीं से फिर से शुरुआत करके आज वो जिंदगी को दिखा रही है कि तू भले मेरी इतनी है इम्तिहा ले ले, पर मैं हार नहीं मानूंगी, मैं सपने देखना नहीं छोड़ूंगी। So we can, I think she got disconnected, but we will just try to add her. प्रज्ञा जी, मैंने ना आपको वापस रिक्वेस्ट भेजी है, so you can just accept that and I can add you. हाँ, आप एक्सेप्ट करके वापस ऐड हो जाइए। Yeah, so we are just trying to add her and इतनी अच्छी बातें करने की हिम्मत अपने आप मिल जाएंगी। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही है कि बड़े सपने देखो, तो मैं भी ये सपने जो देख रही हूँ वो देखना नहीं छोड़ने वाली हूँ और बहुत बड़े सपने देखने वाली हूँ। So that's so beautiful, beautiful. Yes, here she is. And it's okay. हमारे यहाँ पे वो नेट के कनेक्शंस के थोड़े से इधर उधर इश्यूज तो होते रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रज्ञा वेदांत जी से, एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने हमें बताई हैं। एंड वी आर प्लेइंग वन रैपिड फायर राउंड। सो उनका और एक वर्ड जो मैं उनको देने वाली हूँ वो है रिलेशनशिप, फैमिली,
करियर। करियर तो मैं तो ब्यूटी के बारे में ही बताऊंगी कि ब्यूटी इज वेरी नाइस करियर फॉर मी, बिकॉज ये अगर मेरे अंदर था तो मैंने इसी के अंदर मेरी लाइफ और जिंदगी मैंने करियर बनाया, ब्यूटी के अंदर करियर बनाया। और हर एक इंसान का एक करियर होना बहुत जरूरी है। तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करूंगी कि अपना करियर पहले बनाइए, और आप एक ही विजन, आपका विजन आपका क्लियर होना चाहिए। आपका अगर विजन क्लियर है, आपके सपने अगर क्लियर है, तो वो बहुत जल्द पूरे होते हैं। सो गुड, सो गुड, यू सो मोटिवेटिंग। और बहुत एक आपका ही प्यारा वर्ड जो मुझे आपने दिया है, ड्रीम्स, सपने। सपने, यस यस यस। सो सपने के लिए आपके दिमाग में कौन सा वर्ड आ रहा है सिमिलर टू सपने? सपने खुली आंखों में देखना चाहिए, बंद आंखों में Yes. कभी नहीं देखना चाहिए। और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो खुली आंखों से देखा जाता है। बंद आंखों का सपना तो सपना ही रह जाता है। जैसे मैंने देखा है, मैं ऑलवेज खुली आंखों में सपना देखती हूँ। वेरी गुड, सुपर्बली यू सेड, खुली आंखों से सपने देखिए, क्या बात है। yes. और बताइए कुछ यूनिमो, यूनिवर्स ऑफ मॉम्स प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर मैं आपको एक वर्ड देती हूँ यूनिमो, तो उसके बारे में आप क्या yes. कहेंगी? ये स्पीचलेस हूँ मैं। इस यूनिवर्स यूनिमॉम के लिए मैं स्पीचलेस हो गई हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है एवरी मॉम के लिए, कि जो कभी डिप्रेस होती है, कब खुशी होती है, कभी गम आता है, हर एक लेडीज के जिंदगी में ये तीन तो आते ही आते, पड़ाव आते रहते हैं। लेकिन यूनिमो उनके लिए बहुत बड़ा एक वरदान स्वरूप है, जो हर एक मोमेंट में उनको हैप्पीनेस देता है। यूनिमो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हर एक लेडीज को खुशियों से भर देता है। बस एक यूनिमो की ऐप के ऊपर चले जाओ, हर एक को देखते जाओ, देखते जाओ, आपकी हर एक गम को आप भूल जाओगे। तो मैं हर एक मॉम को रिकमेंड करूंगी कि यूनिमो से जुड़ते रहे, और उनके पास से कुछ नया नया एक सीख लेते रहे। और हर एक लेडी को खुद को एंटरप्रेन्योर होना जरूरी है, अपने पैरों पे खड़ा रहना बहुत जरूरी है। वेरी गुड। सो दिस इज हर द एक, मैसेज। यस यस। ये मैसेज हमारे सब सुनने वालों के लिए जो आप मैसेज देना चाहती है वो दीजिए। बस मैं यही यूनिमो की मॉम्स को देना चाहूंगी कि अपने पैरों पे खड़े रह जाइए, और जिंदगी में कभी मायूस नहीं होना है। हर एक मोमेंट के ऊपर हमें ही फेस करना है, हमें ही करना है। लहरों के साथ तो हर कोई तैर सकता है, लहरों के साथ तो हर कोई तैर सकता है। असली इंसान वो होता है जो लहरों को चीर के तैरे। तो बस अपने को लहरों के चीर के तैरना है, और अपने आप में हिम्मत रखनी है, और आगे बढ़ते रहना है। जिंदगी एक नाटक है, जो कभी ना अटकने वाला नाटक। अपने अपना सबका अलग अलग रोल है, बस अपना रोल को प्ले करना है और चले जाना है। तो क्यों ना हम खुशियों से अपना रोल प्ले करें, चाहे वो कोई भी हो। करेक्ट, सुपरबली सेड कि लहरों के साथ तो सभी चलते हैं, पर लहरों को चीर के अगर आप चले जाए तो बस फिर वो मुकाम आपको जो चाहिए वो अपने आप हासिल हो जाएगा। और अपना किरदार, आप इस नाटक के जो किरदार हैं उसको खुशी से प्ले हंसते कीजिए। हंसते, क्यों हंसते रोते हंसते हुए प्ले। या क्रिप करते हुए कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। जस्ट प्ले दैट किरदार हैप्पीली एंड यू आर गो सॉर्टेड। अहेड, गो And अहेड that एंड is, अहेड, गो अहेड yes, एंड and अहेड। that is such a wonderful wonderful thought। मतलब इतना अच्छा लगा प्रज्ञा जी आपसे बात करके। और थैंक यू इतनी सो मच। सारी, इतनी अच्छी आपने जो बात की, मतलब मैं तो ऑलरेडी बहुत सारे टेकअप ले चुकी हूँ आपकी बातों से कि मैं बड़े सपने देखना, मतलब सपने तो देखती थी, पर जो अप्रोच है कि बड़े सपने देखूं, वो अप्रोच टुवर्ड्स द सपने मैं चेंज करने वाली हूँ अभी से, आज से। और लहरों को चीर कर ही अपना काम करने वाली हूँ। सो दैट इज गॉड वंडरफुल ब्लेस यू, हैविंग यू ऑन द शो। एंड यूनिमो गॉड के ब्लेस साथ यू। जैसे आपने कहा, बहुत सारी मदर्स को अगर आपके फील्ड में जो बहुत सारे हैं उनको भी जोड़िए। हम साथ मिलके भी बहुत सारी कुछ चीजें कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि हम इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा कुछ और भी करें बेला आपके जी, साथ। बेला जी, मैं आपके लिए ऑलवेज रेडी हूँ। आपके पास कोई भी सिंगल मदर आती है, किसको भी जरूरत है, जो अफोर्ड नहीं कर पाती है, बेला जी आप। So beautiful thought with we are talking with Pragya ji. I think again little network issue at her and such an inspiring lady. You would really say and agree with me that इतनी अच्छी बात कही उन्होंने।
यू नो कि लहरों को बस चीर के आप चले जाओ और मुकाम जो अगर पालो। और हियर शी वाज टेलिंग। हाँ जी प्रज्ञा जी, आप कुछ कह रही थी कि अगर मैं ये जो कह भी रही कोई थी काम। कि जो यूनिवॉक की मॉम्स को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ और आपको भी एक मैसेज देना चाहती हूँ, मेरे थ्रू आप मेरी आवाज बन के आप लोगों तक पहुंचाइए कि देखो जिंदगी में मैंने बहुत सफर किए, मगर मैंने कभी हार नहीं मानी है। मैंने संघर्ष किया लेकिन हार नहीं मानी। तो मैं ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर कोई इस इंडस्ट्री में या फिर आपके यूनिमो मॉम्स के अंदर कोई सिंगल मदर है, अचानक से कोई आफत आ गई है, बस मुझे मिले, मैं उनको काउंसलिंग करूंगी और जितना हो सकेगा मैं उनको एक उनके पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करूंगी, जिससे मैं यूनिमोक को मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगी। मैं उनको मेरे यूनिमो को क्रेडिट देना चाहूंगी कि जिनके प्लेटफॉर्म के जरिए मैं वहां तक पहुंच पाई। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन यूनिमो यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो आज मुझे थैंक यू यहाँ पे सो मौका मिला। मच, थैंक यू सो मच। और हम आपसे जुड़े रहेंगे कि हम ऐसे ही कुछ और बहुत सारी चीजें कर सके। एंड विश यू ऑल द लक एंड हैप्पीनेस। ऐसे ही रहिए और ऐसे ही बहुत सारे चीजें कीजिए, आगे बढ़िए और बहुत सारे अपने सपने पूरे कीजिए। लॉट्स ऑफ बेस्ट थैंक्स, विशेस। थैंक यू लव सो यू मच। ऑल, थैंक यू लव यू सो ऑल, मच। थैंक्स अ लॉट बेला, गॉड ब्लेस यू, Thank गॉड you. ब्लेस यू। Thank you so much. It was lovely having you. And that was superb. Uh, प्रज्ञा वेदांत विथ है। और ऐसे ही अपने पैरों पे हर किसी को खड़ा होना चाहिए। सो बहुत सारी मोटिवेटिंग, आई एम श्योर, बिकॉज इतनी लंबी जर्नी थी, इतने सारे अवार्ड्स एक्लेम्ड किए हैं, तो आई एम श्योर वो लेसन्स भी कितने सारे हुए होंगे। सो ऐसी ही स्टोरीज, ऐसी ही बातें हम दिल की बात में आपके पास लेकर आते हैं। आप भी ऐसी ही कुछ दिल की बातें दिल से हमसे करना चाहते हैं, तो do ping me and do write to us and do let us know that how do you like this show. So signing off, see you on next Thursday. This was Bela Bhatt, your presenter of the show called Dil Ki Baat, a heart to heart talk with courageous women. See you, take care, bye bye.